वेलकम बैक टू अनदर जर्नी विद देसी इंडियन राइडर्स। आज की हमारी जर्नी है मुंबई टू शिरडी, दैट इज 250 किलोमीटर्स और अभी बजे है सुबह के 9। वील कीप यू अपडेटेड व्हाट हैपेंस ऑन दिस हाईवे, So please subscribe to our channel if you haven't. As said in the morning, we are off to Shirdi, 250 kilometers. So today we're going to be riding on the Eastern Expressway, which connects you to Nasik. So right now, we just left at 9 a.m. and today being a holiday, we have less traffic on the road. And let's see, now we'll be crossing the first Cheknaka in some time. That's the Mulund Cheknaka. We'll be leaving Mumbai for a day or two, returning within a couple of days. Just a break from work again, which is much needed. And I'm glad on this ride, Mandar is with me. Because मैं पुणे जब गया था, that was my solo ride. But today we both are back again. So first toll for the day, Mulund Cheknaka, and time to say goodbye to Mumbai. So glad that it just took us 20 minutes, in fact 15, it's just 9:15 a.m. It took us only 15 minutes to reach from Kurla to Mulund Cheknaka. And that's the best part about, leaving on a weekend early morning at times. Today being a Sunday, I think there will be a lot of people who will be returning to the city, and that's one reason we planned the other way around, to leave the city on a Sunday. So let's cut through this traffic in the city and we'll meet you here on the highway. Let's just cross this junction because now there will be a narrow lane ahead. I just came here a couple of weeks ago, so we'll quickly exit till Thane and see you all again. So guys, we are crossing through Thane right now, and this is one of the wonderful bridges in this Thane city, because if you take this left, it connects you to the Thane Ghodbandar, which directly connects you to the Western Express Highway that takes you to Gujarat. And we have to go straight because we're going to be on the Eastern Expressway as we are heading to Shirdi. काफ़ी सारी जगहों पर टारमैक का काम चल रहा है शायद से. I think it's the preparation before the monsoon, because 3-4 महीने ही है. I think it's January, and by the time you all will be watching the vlog, it must be already February, I think. So yeah, 4-5 months for the monsoon. Glad they are maintaining the road. यही तो खुशी होती है टैक्स भरने के बाद, जब ये सब देखने मिलता है हम लोगों को कि मेंटेनेंस का काम चालू है. So guys, we have right now reached Kalyan Fata, and we'll be taking this flyover to stay on the highway. अगर आप नीचे से जाते हो तो you can go towards Bhiwandi, and then if you take a left you go towards Bhiwandi, and if you take a right you cross through Kalyan city, and that is the same route that also takes you to Malsej Ghat. So we'll be going straight on the flyover and not taking the city route. Glad के flyovers काफ़ी help करते हैं traffic time reduce करने में. And still this is almost going to be a 4-lane flyover once that other side of the flyover is ready for the people to use. तो थोड़ी भूख लगी है अभी. Mandy तो in fact he's done night shift, and he's traveling with me in the morning. Though he had good black coffee before leaving and a little breakfast, but we both are hungry because it's almost been like a couple of hours we had breakfast. तो देखते हैं अगर कुछ अच्छी चीज़ दिखती है हाईवे पे तो we'll certainly show you guys, नहीं तो सीधा ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं. So guys, second toll for the day. हम लोग पड़गा पहुँचे हैं. यहाँ से कल्याण है 12 किलोमीटर और नासिक है 117 किलोमीटर्स. Till now we have not got a lot of traffic. The journey is smooth and we got moving traffic. We could easily cruise at the speed of 80-70 आराम से. तो आगे मिलते हैं फिर आप लोगों से.
चीज़ का था बेसब्री से इंतज़ार, वो जगह आ गई है, दैट इज़ दत्ता स्नैक्स, बिकॉज इट इज़ टाइम टू हैव सम ब्रेकफास्ट। फटाफट खाते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा चार्ज अप होते हैं और मिलते हैं। सो गाइस इट्स 11 AM एंड वी आर स्टिल राइट नाउ इन पड़गा, क्योंकि हम लोग ने क्विक हॉल्ट लिया ब्रेकफास्ट करने। फटाफट नाश्ता किया एट दत्ता स्नैक्स ऑन द मुंबई नासिक हाईवे, एंड फ्रॉम हियर द जर्नी कंटिन्यूज टू शिरडी। It's showing another 3 hours and 40 minutes for us to go. Though it's 11 AM, the climate is soothing, इतनी गर्मी नहीं हो रही है। This is the best part about riding in winters during the day also, because of the less heat और जो कम गर्मी होती है उसके वजह से आपको फटीग नहीं महसूस होता है बाइक पे। You don't get tired fast and your energy doesn't get drained out. So guys, 11:30 बज गए हैं सुबह के एंड वी जस्ट क्रॉस खरड़ी, एंड अभी हम लोग थोड़ी देर में कसारा पहुँचेंगे और फिर घाट सेक्शन शुरू होगा और मज़ा आएगी। और रास्ते पे चलाने एज़ यूजुअल, जैसा मैंने मुंबई टू पूना के ब्लॉग में बोला था, वैसे ही द फन विल बिगिन एज सून एज द घाट सेक्शन स्टार्ट्स। और अगर आपने हमारा मुंबई पुणे का ब्लॉग नहीं देखा है तो हम लोग उसका भी लिंक नीचे कहीं डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और विजिट आवर चैनल एंड यू कैन वॉच ऑल द व्लॉग्स दैट वी हैव पब्लिश्ड। और ये माउंटेन्स क्या नज़ारा है, इसी सब चीज़ के लिए कि 5 दिन हम दबा के काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड पर ऐसा निकलता है स्ट्रेस बस्टर के लिए। वाह वाह वाह। और वो देखिए, अगर उस तरफ आपको दिख रहा है तो वो गाड़ियाँ वहाँ से आ रही है, दैट इज़ व्हेन यू आर कमिंग बैक टू मुंबई। पहले ये घाट डबल, मतलब एक ही वे था आने के लिए भी और जाने के लिए, जिसको यूजुअली राइडिंग लैंग्वेज में सिंगल लेन हाईवे बोलते हैं, वैसा था। बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस बीइंग वन वे एंड दैट इज़ मतलब वो वापस आने के लिए दूसरा वे है, काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है ये। अभी मज़ा आएगी चलाने। बस यहाँ खाली थोड़ा एक है कि यहाँ से संभाल के इसलिए चलाना है क्योंकि रॉन्ग वे से काफ़ी लोग आते हैं, बिकॉज दिस पोर्शन इज़ गुड, अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ घाट, बहुत लंबा घाट है। तो कभी कभार आगे से किसी को यू टर्न वगैरह लेना हो तो यू नो इट्स डिफ़िकल्ट। तो जो लोकल्स हैं मोस्टली आई थिंक दे मे बी यूजिंग द सेम रूट विच इज़ ओनली अ वन वे रोड टू कम बैक एज वेल। देखिए, पर क्या है ना, आप जब राइड पे हैं, आप सिटी के बाहर है साइड पे, यू नो इट्स ओके, यू नेवर नो किसकी क्या मजबूरी है और क्यों रॉन्ग वे यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स रादर आप अपनी जर्नी इंजॉय करो और उनका अपना रूट इंजॉय करने दो। एंड हम लोग कसारा घाट पे हैं और अभी है 11:45 AM। वी स्टिल हैव 129 किलोमीटर्स टू रीच शिरडी, एंड कोई ट्रैफिक नहीं दिखा रहा है आगे। अभी देखते हैं आगे हम लोग घोटी रोड से जाएंगे कि सीधा नासिक से। मोस्टली वी आर प्लानिंग टू गो थ्रू नासिक बिकॉज घोटी रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है मोस्टली, दो इट सेव्स लाइक अ फ्यू किलोमीटर्स इफ वी गो थ्रू नासिक, यू नो थोड़े किलोमीटर्स बढ़ जाएंगे। तो लेट्स सी हाउ द जर्नी गोज, और मोस्टली तो नासिक का ही रूट लेना है, फिर आगे देखते हैं। और कसारा घाट से इगतपुरी इज़ लाइक द नेक्स्ट हॉल्ट इज़ इगतपुरी, विच इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 किलोमीटर्स। घाई नहीं करना है कभी भी, देखिए देखा रॉन्ग वे, इसलिए कभी घाई नहीं करनी है, स्पेशली ऐसे सेक्शंस में जहाँ पे यू कैन नॉट सी, जैसे आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा आपको, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या हो रहा है वो टर्निंग पे। कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी है रॉन्ग वे तो छोड़ दो लोग आते हैं, कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी है रास्ते का शायद थोड़ा काम चल रहा हो, द पैच इज़ नॉट दैट गुड। तो बोलते हैं ना, इट्स बेटर टू हैव पेशेंस रादर देन हरी एंड देन वरी। ये देखिए नासिक 54 किलोमीटर्स, द सेम हाईवे टेक्स यू टू इंदौर which is 471 from Kasara, and Agra that is 1075 kilometers, and another 126 kilometers to go, and यहाँ लिखा है ड्राइव स्लो।
क्या पीसफुल लगता है ऐसा। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पूरा बड़ा वैली है, यू नो। समटाइम्स इवन व्हेन यू ऑन अ राइड एंड यू सडनली सी समथिंग लाइक दिस, जो एकदम ब्यूटीफुल लैंडस्केप होता है, माउंटेन्स, ऐसा लगता है कि एकदम चुप बैठ के वो 2 मिनट के साइलेंस और पीस को एंजॉय करूं। एंड कसारा घाट एंड्स और यहाँ से है 3 किलोमीटर पे इगतपुरी। दैट्स ऑल्सो अ ब्यूटिफुल प्लेस टू कम। मानसून में तो ये जगह की खूबसूरती अलग होती है और काफ़ी सारे है। चलो ये ट्रैफिक से डॉज करके निकलता हूँ, फिर आगे मिलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग हैं इगतपुरी में और यहाँ से शिरडी इज़ अनदर 117 किलोमीटर्स। और इगतपुरी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। खास करके बारिश में अगर आप इगतपुरी कभी आओगे तो यू विल फाइंड फॉग एवरीवेयर, पूरे क्लाउड नजर आएंगे सारी जगह पे। इट्स अ मस्ट विजिट ड्यूरिंग द मानसून। तो चल रहे हैं शिरडी की ओर और आवर डेस्टिनेशन इज अराउंड 2 hours and 30 minutes। तो और ये राइड के बारे में अपना बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये राइड हर साल करते हैं। वैसे तो वी डू दिस राइड एवरी ईयर। वी स्टार्ट फ्रॉम बॉम्बे। हम लोग बॉम्बे से शुरू करते हैं। फर्स्ट वी गो टू शिरडी एंड शिरडी में बाबा जी का दर्शन करने के बाद में ओवरनाइट वहाँ पे रुक के नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी लीव फ्रॉम शिरडी और हम लोग जाते हैं नासिक में वी गो टू द इन्फेंट जीसस चर्च। वहाँ पे भी ऑफर आवर प्रेयर्स एंड देन वाइल ऑन द वे कसारा क्रॉस करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में वाइल गोइंग टू मुंबई गैबंशा पीर बाबा की दरगाह भी लगती है, तो हम लोग वहाँ पे भी जाके अपनी सलामी देते हैं। तो नॉर्मली वी कॉल दिस एज द डिवोशनल राइड ऑफ द ईयर। तो हर साल तो ये नवंबर में करते हैं, पर इस साल ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट हम लोग नहीं कर पाए ये राइड नवंबर में, तो इसके लिए वी आर गोइंग नाउ। एंड नॉर्मली हमारे साथ में और 2 दोस्त होते पर दे कुडंट कम दिस टाइम, सो अगेन मी एंड समीर ऑन आवर वे टू गेट बाबा's blessing and to pray for all of you guys। ओहो ये ट्रैफिक, मतलब आगे एक और टोल और दिस इज़ द घोटी टोल प्लाजा एंड इट्स 12:05 PM, 12:05 हो गई है दोपहर की। नॉट बैड। और घोटी टोल से 119 किलोमीटर्स। आई थिंक द किलोमीटर्स में इंक्रीज बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वी गोना टेक द नासिक वाला रूट, नॉट द घोटी वाला रूट। So, but as of right now, it's 2 hours 47 minutes with 119 kilometers to go. Now, once we don't take a right from Ghoti and we go straight, I'll keep you all updated on how many kilometers increased and what was the time difference. So, let me quickly get through these lanes of the toll because I think there's a lot of traffic, huge trucks. Today being Sunday, I think there are a lot of heavy vehicles on the Eastern Express Highway. So तब तक हाँ यार टोल के बाजू में भी अच्छा व्यू है, देख सकते हैं हम लोग। क्यों आगे मिलूँ, मैं यहीं पे दिखाता हूँ आपको व्यू थोड़ा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो हमारी कंप्लेंट्स रहती थी ना कि ये हाईवे में थोड़ा मेंटेनेंस चाहिए, टिल नाउ टच वुड इट्स बीन अ स्मूथ राइड। मैं तो कभी कभार क्या बोलना पड़ता था, इट्स बीन अ बम्पी राइड। ओके, और ये घोटी टोल से हम निकल गए बैक ऑन द हाईवे विदाउट एनी ट्रैफिक। सी ऑल इन अ बिट। सो गाइस, दिस इज द राइड विच ऑल्सो द नेक्स्ट राइड दैट इज गोना कम। अभी ये जंक्शन आएगा। अरे बाबा, गाड़ी को धक्का मार रहे हैं लोग। जाने दो इनको पापा, जाने दो, जाने दो। अगर हम लोग ये राइड भी लेते हैं देन ऑल्सो वी कैन गो टू शिरडी, बट हाईवे की कंडीशन यू नो इट्स नॉट दैट ग्रेट फ्रॉम हियर, सो वी गोना बी टेकिंग द नासिक हाईवे। दैट इज we'll continue our journey on NH 160. I think हम लोग ने राइट डिसीजन लिया क्योंकि रोड्स आर ऑसम, प्लस देयर इज नो ट्रैफिक।
और टाइम में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया. इट्स स्टिल द सेम 2 hours and 15 minutes. And kilometers be 108 kilometers. So we are right now at Padri, which is 25 kilometers before Nasik. So I think once we reach Nasik, वहाँ से फिर शिरडी थोड़ा आगे almost 60 odd kilometers होगा, 70 odd kilometers. तो फटाफट निकल जाएगा ये रास्ता भी. और हम लोग का टेंटेटिव अराइवल टाइम जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है, सो इट्स गोना स्टिल टेक 2 hours and 13 minutes टू बी प्रिसाइज. हम लोग 2:30 बजे दोपहर के पहुंच जाएंगे. नॉट बैड. So we took the Mumbai-Nasik highway and it's not much of a difference in kilometers, but the benefit you get is 3-lane highway plus better road conditions. So we just, we are at the outskirts of Nasik city and we still have another 90 kilometers to go. I don't know unfortunately क्या हो रहा है. Google Maps को मेरे बार-बार rerouting बता रहा है, but it is telling us to take a right after 1.3 kilometers. It's telling us to exit the highway and take a right from a place called Indira Nagar Road. So guys, we didn't take the complete NH 160 which we were going to exit from Dwarka. तो हम लोग को वेगली याद है कि हम लोग जब 2019 में आए थे तो हम लोग ये ब्रिज के नीचे आए. We took a U-turn. This route straight takes us to Mumbai, but there is a left and you go through inside Nasik city, which saves you a lot of time and 5-6 किलोमीटर का फ़र्क भी पड़ता है और क्या है कि जल्दी पहुंच जाएंगे. प्लेजेंट लग रहा है, ये छाँव आ रही है झाड़ के नीचे. कभी कभार हाईवे एग्जिट करके भी मज़ा आती है ऐसे रास्ते लेने. So this helps me relate to the last vlog, when I was riding solo, and I did mention a couple of times, that I'm missing Mandar already. This is the reason, because when there are two people, together, you have two different opinions, and that helps you to come with one precise decision, what exactly has to be done. So let's cut through this city traffic. And now MH की ही नंबर प्लेट है, पर MH15 देखने ज़्यादा मिलेगी क्योंकि हम लोग हैं in Nasik, the city of grapes and wines. So guys, after exiting the Mumbai-Nasik highway, National Highway 160, हम लोग ने एक अंदर का रास्ता लिया and then now we are on the Nasik-Pune road, which actually is via Shirdi. Or you can also call it Shirdi-Pune road, and it's National Highway 60 it is telling us. And right now it is 1:10 PM. दोपहर हो चुकी है और हम लोग को और 1 घंटा 45 मिनट्स, 1.25 घंटा दिखा रहा है पहुंचने के लिए. और ये ओजार एयरपोर्ट का मैंने साइन बोर्ड देखा. Even I personally don't know what's the name of the airport in Nasik. So if you all know what Ozar airport is, please comment in the section below. This is the 4th toll where you're crossing Sinnar. The same route takes you to Pune as well from Nasik. Sinnar से पुणे भी 200 किलोमीटर है और शिरडी है 72 किलोमीटर्स. I don't know यार, ये बॉम्बे के बाहर आओ, you get a lot of rumblers. It's probably as you move out of the city, there are a lot of villages that come in between, so that could be a possibility. So the motorcyclists and the car drivers, they slow down while crossing and all. तो गाइस अभी नासिक क्रॉस करके हम लोग अभी पहुंच गए सिन्नर, और ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हैं तो ये है सिन्नर बस स्टेशन, और यहाँ से शिरडी इज़ अनदर 60 किलोमीटर. तो हम लोग जा रहे हैं सीधा शिरडी. थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे बस डेपो है, इसके ऊपर ठीक है चलता है. तो अभी दिखा रहे हैं यहाँ से 1 घंटा 16 मिनट और है शिरडी के लिए. तो शायद और अनदर अभी तो बज रहे हैं कि 12:30, तो लगता है 2 बजे तक तो शायद हम लोग शिरडी पहुँच ही जाएंगे. अभी थोड़े ट्रैफिक काटते हैं और फिर आगे आपसे मिलते हैं. It's 1:49 और हम लोग अभी है सिन्नर में ही. वी जस्ट क्रॉस सिन्नर सिटी और उससे थोड़ा सा आगे आए. वी जस्ट टुक अ स्मॉल चाय ब्रेक
क्योंकि वी आर फीलिंग अ लिटिल बिट स्लीपी वाइल राइडिंग, तो सोचा थोड़ा एक चाय मार के फिर आगे बढ़ते। तो हम लोग चाय पीते हैं एंड फिर आपको मिलते हैं मोटरसाइकिल पे। यू गाइस कीप वॉचिंग एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो सिन्नर डेपो से आगे आने के बाद 1 किलोमीटर के बाद यू इमीजिएटली टेक अ लेफ्ट एंड देन दैट अगेन गेट्स यू कनेक्टेड बैक टू नेशनल हाईवे 60 एंड एज मैंडी मेंशन फ्रॉम सिन्नर इट इज 60 odd kilometers। तो अब सिन्नर बस डेपो से आगे आओ 1 किलोमीटर और लेफ्ट ले लो। इसे साई पालकी कहते हैं। काफ़ी लोग चल कर आते हैं एंड आई नो अ कपल ऑफ देम हु कम वॉकिंग फ्रॉम मुंबई। दिस इज़ ऑल फेथ। आई नो मैं हर ब्लॉग में फेथ की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो ये चीज़ है जो इंसान को ना हमेशा एक सही राह दिखाती है। सिन्नर से शिरडी भी सिंगल लेन है बट थोड़े रफ पैचेस है वंस अगेन, बट आई थिंक दिस 50 kilometers विल ऑल्सो बी easy and smooth। तो अभी बज रहे हैं 2:33 और शिरडी यहाँ से 31 किलोमीटर्स है। पता नहीं, पर जब भी जैसे जैसे शिरडी नज़दीक आ रहे हैं वो एक्साइटमेंट बहुत बढ़ रही है अंदर ही अंदर। पता नहीं आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। पर जैसे जैसे वो शिरडी नज़दीक आ रही है तो एक अंदर से एक जल्दी पहुँचने की इच्छा बढ़ती जा रही है। और शिरडी का ऐसा बोलते हैं ना लोग, ऐसा कहते हैं कि शिरडी का ऐसी है कि अगर आप प्लान करो तो कभी भी होता नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों ने भी प्लान किया था कि पहले जाएंगे करके, बट वो नहीं हो पाया और अचानक से आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो यार शिरडी। तो शिरडी का कुछ ऐसे ही है गाइस, प्लान करो तो नहीं होता है पर अचानक से हो जाता है। वो कहावत है ना कि हवा का झोंका आता है और बाबा का बुलावा लाता है, और फिर कोई पैदल आता है और कोई मोटर गाड़ी लाता है। तो बस ऐसे ही है समझो। तो अभी जैसे जैसे नज़दीक पहुंच रहा हूँ वैसे वैसे एक्साइटमेंट और बढ़ रहा है, दुगना हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा ये ब्लॉग, और आप लोगों को भी ये शिरडी का ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ में। बस 29 किलोमीटर्स मोर एंड वी विल बी इन शिरडी। और अभी हम लोग वही रोड पर है, द सेम रोड दैट वी टुक फ्रॉम सिन्नर। शिरडी अभी यहाँ से कुछ 18 किलोमीटर है एंड we are going to reach there in another 25 minutes। बेस्ट पार्ट लगता है इस रोड पे आने का कि आप अगर आजू बाजू में देखो ना, मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स के नाम बाबा के नाम से, साई दरबार, साई आंगन, साई दीप, साई द्वारका, वो सब देख के ही इतनी खुशी होती है ना। एक क्या बोलते हैं, एक इशारा होता है कि यू आर रीचिंग शिरडी करके, एक इशारा होता है कि शिरडी नज़दीक आ गई करके। और शिरडी के बारे में तो क्या जितनी बात करो उतनी कम है। सो गाइस अभी हम लोगों ने राइट ले लिया है पोहे गाँव से, और अभी शिरडी इज़ लाइक व्हाट 4 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो हम लोग ऑलमोस्ट शिरडी एंट्री कर चुके हैं। इट इज़ जस्ट दैट वी आर नाउ गोइंग नियर द टेम्पल, क्योंकि हम लोगों ने जो होटल बुक किया है वो टेम्पल के बिल्कुल नज़दीक ही है, मंदिर के एकदम नज़दीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए मंदिर की तरफ। ये रोड यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो अगर आप बाइक से आ रहे हो तो थोड़ा संभाल के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे रोड थोड़ा सा आई थिंक बारिश की वजह के बाद में काम नहीं हुआ है। बिकॉज आई थिंक शिरडी भी अभी बहुत टाइम के बाद में मंदिर खुला है नवंबर के महीने में, तो तब तक तो यहाँ पे सब कुछ बंद ही था, नो वन वॉज कमिंग। तो इसके लिए फिर इन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, बट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर गोप्रो में दिख रहा है अगर आपको, तो अगर आप देखते होगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। So guys, it's exactly 3:10 PM और हम लोग शिरडी पहुंच चुके हैं। ये गेट इज़ द मेन एंट्रेंस, ये मुख्य द्वार है शिरडी एंटर करने का। अ टोटल जर्नी ऑफ 248 kilometers. The reason it was 248 because we took the Mumbai-Nasik highway and then we came through Sinnar to Shirdi to avoid the bad patch on the Goti road. पोहे गांव के बाद एक 3-4 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा ख़राब था, पर बाकी रास्ते की कंडीशन एकदम टॉप क्लास है। तो फाइनली बाबा के यहाँ पहुँच गए हम लोग
तो हम लोग थोड़ा होटल में चेक इन करते हैं, फ्रेश होते हैं एंड विल सी सून. So guys, finally after completing a distance of 248 kilometers from Mumbai, we finally reached Shirdi and we're going to stay in this hotel called Grand Castle Inn. So that's all for this video. That's the end of part 1. Stay tuned for part 2 because part 2 mein we'll be showing you the tour of Shirdi and then our return journey. While returning we'll be visiting the Infant Jesus Church and the Gaibansha Pir Baba Dargah. So stay tuned for part 2. That's all for Desi Indian Riders for part 1. We'll be back with another video very soon. Until then, you take care of yourself and as always, ride safe.